ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ 9th ਇੰਟਰਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਲਏ, ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ 5000 ਰੁਪੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 5000 ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਰੁਪੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ 5000, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੇਟ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਰੇਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ 100 ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ 10 ਐਕਸਟਰਾ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ 110। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ? 110। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਮੈਂ 10% ਵੱਧ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 10% ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਈਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਈਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 5000 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਅਮਾਊਂਟ। ਅਮਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ 5000 ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਮਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਟੂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 100। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ 5000 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਲਏ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 10% ਹੈ ਪਰ ਐਨਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 ਈਅਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 5000 ਇੰਟੂ ਰੇਟ 10% ਹੈ ਇੰਟੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਈਅਰ ਬਾਈ 100। ਤਾਂ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 500। ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ 500। ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਸਟ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ 5000 ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ 500 ਹੈ, ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 5500। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਪੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਔਨ ਰੁਪੀਜ਼ 750 in 3 years and 4 month। 750 जो है प्रिंसिपल है एंड 3 years 4 month जो है दैट इज़ अ टाइम। 3 ईयर है, ठीक है, 4 मंथ है। तो असी मंथ नू ईयर दे विच जो है कन्वर्ट कर लाँगे 12 नाल डिवाइड करके। तो इनू असी इस तरीके नाल सिंपली भी लिख सकते हैं 3 into 4 by 12। 4 and 12 कट हो जाएंगे तो दैट इज़ इक्वल्स टू 3 into 1 by 3।
दैट मीनस असी फ्रैक्शन कंप्लीट करिए तैनूं 10/3 लिख सकते हैं ईयरस। ओके, ईयर दे विच असी क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज सानूं ये पर एनम गिवन है, एनम का मतलब ही ईयर है। तो जो रेट ऑफ इंटरस्ट है वो की गिवन है 10% पर एनम। ठीक है, तो दोनों चीज़ां ये सेम होनी चाहिए। तो फस्ट कंडीशन ये ध्यान रखनी है। उस तो बाद असी इंटरस्ट सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। प्रिंसीपल 750 इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट दैट इज़ 10 इंटू टाइम 10/3। तो सिंपली असी 10 उपर लिखांगे 3 नीचे एंड डिवाइड बाय की होंगे 100। ओके, हम इन्हूं सॉल्व कर लेना। 0 नाल 0 कट हो जाएगी, 3 दे टेबल ते कट करांगे 250 आएगा। सो दैट इज़ इक्वल टू 250। 250 साढ़े कोल की है इंटरस्ट, और इंटरस्ट एंड असी अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है नाल। तो अमाउंट की होएगी प्रिंसीपल 750 प्लस इंटरस्ट 250 दैट इज़ इक्वल्स टू 1000। ओके, नैक्सट है सैकेंड पार्ट दे विच ₹5000 एट 8% पर ईयर एंड फ्रॉम 23 December 2011 टू 29 July 2012। मीन सानू प्रिंसीपल डायरैक्ट गिवन है 5000 एंड रेट ऑफ इंटरस्ट भी डायरैक्ट गिवन है दैट इज़ 8% पर एनम ईयरली गिवन है। एंड दैन जो टाइम है, टाइम सानू इस तरीके नाल दिता होया है 23 December 2011 तो 29 July 2012 तक। तो ये सानू काउंट करना पैना। तो सब तो पहला असीं देख लैने दसंबर के जो दिन है, नैक्सट जनवरी आएगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड लास्ट कितों तक है जुलाई तक। ओके, तो दसंबर के दिन किस तरीके नाल काउंट करने हैं। दसंबर देखो टोटल अपने कोल कितना हुंदा है 31 डेज़। तो 31 दे विचों ये माइनस कर दो, 23 तो काउंट करना स्टार्ट करना है। तो 31 माइनस 8 23 करांगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 डेज़ साढ़े कोल की है दसंबर दे है। उस तो बाद जनवरी किन्ने दी होंदी है 31। उस तो बाद फरवरी दे विच देखो असीं फरवरी किहड़े ईयर दी लै रहे हैं, फरवरी 2012 दी आ रही है। ठीक है, तो 2012 लीप ईयर है, तो इस दे विच फरवरी दे विच 29 डेज़ होंगे। उस तो बाद मई दे विच 31, अप्रैल 30 मार्च 31, अप्रैल 30 एंड मई अगेन 31 एंड जून दे विच 30 एंड जुलाई दे विच असीं सारा मंथ नहीं लेना, 29 तक ही लेने हैं। तो दिस मीनस 29 डेज़ हो गए। ओके, उस तो बाद असीं इसनूं टोटल करना है। टोटल ये किन्ने दिन बनते हैं सारे, तो टोटल अगर असीं करांगे तो ये है 219 डेज़। ओके, तो ये अपने को की है टाइम है। तो टाइम कितना आया 219 डेज़। बट जो अपने को रेट ऑफ इंटरस्ट है वो पर ईयर के अकॉर्डिंग है, तेनों ईयर दे विच कन्वर्ट कर लेना है 2019/365। तो ये हो जाएगा हुण ईयर दे विच। अगर असीं इहनूं कटिंग करांगे तो 73 के टेबल ते कट होणगे। तो 73 के टेबल ते कट करके साडे कोल की आएगा 3/5। ठीक है, 3 ते कट होएगा, 5 ते कट होएगा, तो 3/5 ईयर्स। ठीक है, उस तो बाद बस सिंपली असी इंटरस्ट कैलकुलेट कर लेना है। इंटरस्ट की आएगा प्रिंसीपल 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट 8 इंटू टाइम दैट इज़ 3/5 और डिवाइड बाय 100। 2 zeros नाल 2 0 कट हो जाएगी और 5 नाल 50 कट करांगे 10, तो 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 10 240। तो 240 साढ़े कोल जो है इंटरस्ट आ गया। दैन अमाउंट कितनी होएगी, प्रिंसीपल मीन्स 5000 प्लस इंटरस्ट 240 दैट इज़ इक्वल्स टू 5240 दैट इज़ अ अमाउंट। नैक्सट क्वेश्चन दे विच सानूं प्रिंसीपल गिवन है 2600 इन टाइम कितना 2 ईयर 3 मंथ एट 1% पर मंथ। हम देखो रेट ऑफ इंटरस्ट जो दी हुई है पर मंथ के अकॉर्डिंगली दी हुई है, तो जो टाइम है उसमें असीं मंथ च कन्वर्ट कर लेना है, तो क्वेश्चन ईजी रहेगा। सो प्रिंसीपल 2600 है एंड रेट ऑफ इंटरस्ट जो है 1%
पर मंथ गिवन है एंड टाइम किन्ना है साढ़े को 2 ईयर 3 मंथ है तो 2 ईयर है ईयर दे असीं मंथ कन्वर्ट कर लांगे 12 नाल मल्टीप्लाई करके ठीक है प्लस 3 मंथ होर है ऐड कर देने तो 2 × 12 24 प्लस 3 दैट मीनस 27 मंथ तो साढ़े को जो टाइम है दैट इज़ 27 मंथ्स आ गए इंटरस्ट सिंपली 2600 प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट 1 इंटू टाइम इज़ 27 डिवाइड बाय 100 तो 2 0 नाल 2 0 कट हो जाएगी 26 नूं 27 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साढ़े कोल की आएगा 702 सो इंटरस्ट आ गया है तो अमाउंट की होएगी प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरस्ट दैट इज़ इक्वल्स टू 3302 ओके सो ये होएगी अमाउंट। नेक्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल गिवन है 4000 इन टाइम 1 and 1/3 ईयर्स एट 2 पैसे पर रुपये पर मंथ। देखो जो रेट ऑफ इंटरस्ट गिवन है वो की गिवन है सानू रेट ऑफ इंटरस्ट जी है पहले यही चैक करते हैं 2 पैसे पर रुपये पर मंथ 2 पैसे पर रुपये पर मंथ तो इसनों पहले थोड़े ध्यान नाल देखना 2 पैसे है पैसे है तो पहले असीं इहनूं रुपये च कन्वर्ट करांगे बिकॉज प्रिंसिपल रुपीज़ दे विच है तो रुपये च कन्वर्ट करने लई सानूं डिवाइड करना पेगा 100 तो हुण ये रुपीज़ दे विच आ गया। दैन नैक्सट है पर रुपये का की मतलब है कि आपां डेफिनेशन की हुई है जो असीं रेट ऑफ इंटरस्ट लगाउने आ तो वो पर 100 के अकॉर्डिंग दिता हुंदा है तो असीं उहनूं परसेंटेज दे विच लिखदे आ तो ये पर 100 मतलब पर 100 रुपीज़ लिए नहीं है ये पर रुपये है मतलब 1 रुपये लिए है ठीक है तो असीं इहनूं 100 रुपये लिए कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करांगे ठीक है तो ये हुण परसेंट विच आ जाएगा। दैन पर मंथ ये दिता मंथ के हिसाब नाल है तो असीं रखांगे मंथ के हिसाब नाल सेम एज ओके तो 100 नाल 100 कैंसल हो जाएगा तो दैट इज़ 2% पर मंथ ठीक है ये आएगा रेट ऑफ इंटरस्ट। अगेन प्रिंसिपल जो है वो क्लियर है सानू 4000 है एंड जो टाइम है टाइम कितना 1 ईयर एंड 1/3 पहले असी फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू 3 + 1 4 दैट इज़ 4/3 ईयर्स ओके तो हुण बिकॉज साडे कोल रेट ऑफ इंटरस्ट मंथ दे विच है तो असीं मंथ च कन्वर्ट कर लेने तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो तो दिस आएंगे मंथ ठीक है तो कटिंग हो जाएगी 4 × 4 16 सो 16 मंथ्स आ जाएगा साडे कोल टाइम तो हुण असीं कैलकुलेट कर लवांगे इंटरस्ट तो इस दे विच इंटरस्ट की आ जाएगा प्रिंसिपल दैट मीनस 4000 इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट दैट इज़ 2 इंटू टाइम इज़ 16 डिवाइड बाय 100 तो जीरोज़ नाल जीरोज़ कट हो जानी है सो दैट इज़ इक्वल्स टू 1280 ओके सो अमाउंट देखेंगे अमाउंट की आएगी अमाउंट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरस्ट प्रिंसिपल है 4000 प्लस इंटरस्ट है 12080 सो दैट इज़ इक्वल्स टू 5280 रुपीज़। The simple interest on a certain sum of money is 3/8 of the sum in 6 × 1/4 years. Find the rate percent charged. रेट परसेंट असी फाइंड आउट करनी है मीनस आर असी ये फाइंड आउट करनी है तो प्रिंसीपल जो है उसे सपोज कर लेने गिवन नहीं है तो असी सपोज कर लेंगे प्रिंसीपल सपोज एक्स है ओके तो जो सिंपल इंटरस्ट उस पर बन रहा है मतलब जो साडा आई बन रहा सिंपल इंटरस्ट वो की है 3/8 ऑफ द सम 3/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई सम मतलब एक्स का ठीक है तो दैट मीनस 3x/8 है ये साडे कोल प्रिंसिपल गिवन है एंड टाइम गिवन है 6 × 1/4 दैट मीनस 24 + 1 25/4 ईयर्स ओके तो रेट असी फाइंड आउट करना है हुण असी फॉर्मूला अप्लाई कर देना है
इंटरस्ट इज इक्वल टू प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम बाय 100 एंड प्रिंसीपल की वैल्यू पुट कर दो दैट इज़ 3x/8 दैट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसीपल x है आर असी फाइंड आउट करना है इंटू टाइम है 25/4 इंटू डिवाइड बाई की होंगे 100 सॉल्व करांगे 25 नू कट कर दो 600 नाल कितना आ जाना है 4 आ जाना है तो इतने अपने को की आएगा 3x/8 इज इक्वल्स टू x इंटू r/4 इंटू 4 16 आ जाएगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ r ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ। सो 3x/8 है जो 16 इधर डिवाइड च है ऊपर मल्टीप्लाई होएगा एंड जो ये मल्टीप्लाई च x वो डिवाइड होएगा तो इतने की रह जाना ओनली r तैनू लैफ्ट साइड भी लिख सकते हो r इज इक्वल्स टू दिस ठीक है। दैन x नाल x कट हो जाएगा 8 नाल 16 कट करेंगे 2 तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3 × 2 6% पर एनम आएगा बिकॉज असी टाइम जो ईयर दे विच लिया होया the 6% per annum is rate of interest. In what time will the interest on a certain sum of money at 6% be 5/8 of itself? ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ दैट इज़ 6% एंड नैक्सट साढ़े कोल की होएगा देखो टाइम अगर असी इनू सपोज कर लीए पर एनम के हिसाब नाल ही है तो टाइम ईयर दे विच आ जाएगा डायरैक्टली। हाँ जी नैक्सट साढ़े कोल की है सम ऑफ मनी द इंटरस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ इंटरस्ट दिस बी 5/8 ऑफ इटसेल्फ। जो इंटरस्ट गिवन है वो की है 5/8 ऑफ इटसेल्फ 5/8 ऑफ की दा प्रिंसीपल तो प्रिंसीपल सानू गिवन नहीं आ तो प्रिंसीपल नू असी सपोज कर लेने x है तो 5/8 की दा हो जाएगा फिर x दा हो जाएगा दैट मीनस 5x/8 हो गया साढ़े कोल इंटरस्ट। हुण सिंपली इंटरस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करांगे इस दे विच वैल्यूज़ पुट कर देनी है तो की आ जाएगा जो इंटरस्ट है 5x/8 दैट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसीपल x इंटू r इज़ 6 इंटू टाइम असी फाइंड आउट करना है बाय 100 तो हुण सिंपली जो असी फाइंड आउट करना है t इसनू इस साइड रखना है 5x/8 इंटू जो 100 डिवाइड दे विच है ऊपर मल्टीप्लाई दे विच आएगा एंड जो मल्टीप्लाई च है x इंटू 6 सो डिवाइड च आ जाएगा दैट इज़ इक्वल्स टू t। हुण कटिंग कर दो की आएगा अगर असी 4 दे टेबल ते कट करांगे तो 25/2 ओके। दैन 5 इंटू 25 दैट मीनस 125 इंटू x डिवाइड बाय 2 इंटू 6 12 तो ये वैल्यू की दी है t दी। सो टाइम साढ़े कोल ए आ गया ठीक है एक्स नाल भी एक्स कट हो जाएगा तो ये साढ़े कोल टाइम आ गया टाइम असी ईयर दे विच लिया होया तो इसनू 12 नाल डिवाइड कर दो तो पहले 1 ते जाएगा एंड दैन 5/12 ईयर तो देखो ये जो 1 आंसर आया दैट इज़ अ कंप्लीट 1 ईयर तो इनू असी लिख सकते हैं 1 ईयर। बाकी जो 5/12 है इनू असी मंथ दे विच कन्वर्ट कर देंगे तो मंथ च कन्वर्ट होएगा 12 नाल मल्टीप्लाई करके दैट मंथ्स 12 नाल 12 कैंसल हो जाएगा सो 1 ईयर 5 मंथ ठीक है ये आ जाएगा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी आ अशोक लेंट आउट ₹7,000 एट 6% एंड ₹9,500 एट 5%। फाइंड हिज टोटल इनकम फ्रॉम द इंटरस्ट। टोटल इनकम दसनी है इंटरस्ट तो जो दी बन रही है मतलब दोनों का टोटल इंटरस्ट कितना है इन 3 ईयर के विच। तो देखो असीं इन्होंने दोनों अलग अलग सॉल्व कर लेने। इत्थे प्रिंसीपल है 7,000 तो इंटरस्ट लिए डायरैक्ट फॉर्मूला लगा देने। रेट ऑफ इंटरस्ट 6 है एंड टाइम साढ़े कोल कितना 3 ईयर है ठीक है। सो
डिवाइड बाय 100 तो कितना आ जाएगा 2 zeros कट हो जाएंगे तो 70 × 6 × 3 इन्हों असीं मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर आ रहा है 1260। ओके दैन सैकेंड पार्ट जो इसका है ये प्रिंसीपल इनू असीं I1 लिख देंगे इंटरस्ट इनू I2 बिकॉज दोनों का इंटरस्ट असीं अलग अलग कर रहे हैं। तो सैकेंडली प्रिंसीपल 9500 रेट ऑफ इंटरस्ट 5% है इंटू टाइम दोनों लिए 3 ईयरस है डिवाइड बाय 100 तो 2 zeros नाल 2 0 कट हो जाएगी 95 नू मल्टीप्लाई करांगे 5 × 3 15 नाल तो ये की आ जाएगा 1425। सो दोनों का इंटरस्ट ये आ गया तो टोटल इंटरस्ट साढ़े कोल कितना आ जाएगा दोनों ऐड कर दो ठीक है तो दोनों असीं ऐड करांगे तो कितना आया 2685। तो जिन्नी इनकम उन्होंने इंटरस्ट तो बन रही है वो ये है टोटल इंटरस्ट। Johan lent rupees this to Mohan at 7.5% per annum। जोहन ने लैंड जो मोहन है उसनों रुपीज़ दिते हैं दैट मीनस ये साढ़े कोल की होया प्रिंसीपल। ओके रेट ऑफ इंटरस्ट कितना लगा 7.5 तो आर साढ़े कोल किन्ने 7.5% पर एनम के अकॉर्डिंगली दिता होया। उस तो बाद नैक्सट मोहन डिसचार्जिज द डेबिट आफ्टर 8 मंथ। मोहन किन्ने टाइम बाद डेबिट वापस कर रहा है मीनस पैसे वापस कर रहा 8 मंथ बाद तो टाइम कितना होएगा साढ़े को 8 मंथ्स। ओके बिकॉज ये पर एनम के अकॉर्डिंग है तो असीं इहनूं ईयर दे नाल कन्वर्ट कर लैने 12 नाल डिवाइड करके तो ये हो जाएगा ईयर दे विच कटिंग कर देंगे 4 के टेबल दे तो की आ जाएगा 2/3 ईयर। दैन जो मोहन डेबिट क्लीयर कर रहा है 8 मंथ के बाद बाय गिविंग एन ओल्ड ब्लैक एंड वाइट टैलीविजन एंड रुपीज़ दिस एक टीवी दे रहा है एंड उसके नाल इन्ने रुपए वापस कर रहा है ठीक है। तो मतलब टोटल अमाउंट वो रुपीज़ के विच नहीं दे रहा एक टीवी दे रहा है और इन्ने पैसे नाल दे रहा है। दैन फाइंड द प्राइस ऑफ द टीवी तो असीं टीवी की जो है प्राइस दसने कि टीवी का प्राइस की होएगा। तो मोहन ने जिन्ने भी पैसे करने वो देख लेने असीं अमाउंट होएगी अमाउंट वापस करनी होएगी तो जिन्नी भी अमाउंट है वो किहदे इक्वल होनी चाहिए जिन्ना टीवी का प्राइस होएगा एंड प्लस जिन्ने रुपए वो दे रहा है। ओके तो हुण पहले असीं इहदे लई अमाउंट फाइंड आउट करांगे तो इत्थे साडे कोल इंटरस्ट पहले देख लीए की होएगा प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट 7.5 इंटू टाइम इज़ 2/3 डिवाइड बाय 100 और पॉइंट है पॉइंट नूं रिमूव करांगे तो असीं डिवाइड बाय 10 कर लवांगे। ओके दैन अगर असीं इहनूं 2 के टेबल ते कट कर दिए 5 एंड अगेन 5 के टेबल ते कट करांगे 15 एंड दैन 3 नूं 15 के टेबल 15 नाल कट करांगे तो आ जाएगा 5 तो दैट इज़ इक्वल्स टू अपने कोल की रह जाएगा 2550 × 5/100। हाँ जी मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12750/100 तो 100 इस ते एग्जैक्ट कटिंग होएगी नहीं पॉइंट्स च आंसर आएगा। सो 100 नूं कट करन दी जरूरत नहीं है सो इहदा असीं पॉइंट ऐड कर लैने आ। ओके ये आ गया साडे कोल इंटरस्ट। उस तो बाद असीं फाइंड आउट करनी है अमाउंट तो अमाउंट कितना आ जाएगा प्रिंसीपल प्लस ए इंटरस्ट ऐड करांगे तो साडे कोल अमाउंट आ गया 2677.50 तो दैट इज़ अ अमाउंट। हुण ये अमाउंट किहदे इक्वल होनी चाहिए जो टीवी आ एंड जो उसने रुपीज़ वापस किए हैं जां फिर असीं ये कह सकते हैं भी इन्ने रुपीज़ उसने वापस करने से ठीक है अमाउंट जिहड़ी और ये विचों इन्ने रुपीज़ वो वापस कर रहे हैं जो बाकी रह गया वो की होएगा जिन्ना टीवी का प्राइस है। तो सिंपली जो टीवी का प्राइस है वो किहदे इक्वल आ जाएगा इस टोटल अमाउंट दे विचों जो रुपीज़ उसने वापस किए हुए हैं माइनस कर देने दैट मीनस 1422.50। ओके तो इसी माइनस करांगे की आ जाएगा 1255 रुपीज़ तो एक ही होएगा टीवी की कॉस्ट होएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।